So this is all theory, and I'm assuming that there is some data that needs to be remembered, which you all would remember. But let's get on to discussing all of these one by one. So let me first talk about what is a semiconductor. As the name suggests, this particular material is supposed to give us a behavior which is not like a conductor, as well as it is not like an insulator. So it lies somewhere between a conductor and an insulator. Now, what is the problem that we face with a conductor? What happens is that when you have a conductor and you connect it in a circuit, as you pass current through the conductor, the temperature increases because every conductor has some amount of resistance. As the current increases, as the current flows for a longer time, there is bound to be heat generated, and this heat raises the temperature of the conductor. Now, as the temperature of the conductor increases, the electrons inside the conductor, they start, while they're moving, they start undergoing more collisions with the ions and keep losing a lot of energy. So the drift speed decreases, and hence the current in the circuit decreases, or we can say that the resistance of a conductor increases with time as the usage increases because of the temperature increase. Now, this problem led us to the use of a semiconductor. Now, what does a semiconductor do? In the case of a semiconductor, as the temperature increases, its conductivity increases or resistivity decreases, and hence the dissipation of energy in the form of heat decreases, क्योंकि ये अब resistance इसकी बढ़ नहीं रही है. हम बोल सकते हैं कि इस मटेरियल की रेजिस्टेंस कम हो रही है, और अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और इसलिए मटेरियल में लॉसेस कम होंगे, हीट एनर्जी जनरेशन कम होगा, डैमेजेस कम होंगे, वेयर एंड टेयर कम होगा, एंड दैट इज व्हाई वी नॉर्मली प्रेफर यूजिंग सेमीकंडक्टर्स. So that saves your battery life. So that is why in electronic circuits, semiconductors save our battery life. They increase the usage of battery, and hence they're very, very important. Now, normally semiconductors are made of materials which have a valency of 4. Let's say silicon. So silicon जो है, इसके outer shell में 4 valence electrons हैं. And this silicon is bound covalently by 4 more silicon atoms around it. And these together help in completing the octet of the entire structure. And this is how silicon looks like. Now, what happens is, even at room temperature, some of the valence electrons which have higher energy, they become free. So when they become free, that is when they lose this particular site, so what happens is that this particular electron, it comes here. So what happens is you have a free electron and you have a hole here. तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ यहां से निकल के वो बाहर आ गया और होल यहां पर क्रिएट हो गया. Now imagine that you expose such a system to an electric field. So the benefit is two-way. When you connect it to an external electric field, the electrons will start moving in a direction opposite to the electric field. That is what we call as current. And you would see that some electrons that are bound on this side, they're on this side, but they're bound. They might, because of the electrostatic force, start moving. And while they're moving, they might hit and close here. So when they
come and sit in this particular hole or vacancy, you see that a hole is created here. So you can see that the holes move in this direction. So effectively, when I say current, I should say that electrons moving in this direction, I should say electrons moving in this direction and holes moving in this direction gives me a current in this direction. And it is this current that helps in the flow of charges here. So this is how a semiconductor behaves. Now, what is our aim to increase conductivity? If I have to increase the conductivity of a semiconductor, I should either increase free electrons or I should increase the number of holes. मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने होंगे या होल्स इंक्रीज करने होंगे या दोनों इंक्रीज करने होंगे. अब इस काम को करने के लिए दो तरीके हैं. एक तो ये है कि आप स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगाइए. इफ यू पुट इन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड्स यू विल हैव मोर वैकेंसीज इवन एट रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से और ब्रेक हुए. मतलब अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, एक वेकेंट साइट क्रिएट कर रहा है वैलेंस शेल में, तो मैं उसे बोल सकता हूँ होल और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जनरेट हो. सो मेरा कंडक्शन डबल इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है और उस इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है वहां दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो होल मूव करता है. तो मैं ये बोलता हूँ कि करंट मेरे लिए एक तरीके से डबल साइड्स ऑफ फ्लो इंक्रीज हो गई, डबल साइड्स ऑफ फ्लो जनरेट हो गई. इसलिए सेमीकंडक्टर्स में अगर हम किसी भी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बढ़ा दें तो हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है. हाउ डू वी डू इट? टू डू दैट, what we do is called doping. Doping is mixing or adding a trivalent or pentavalent impurity to silicon. So let's say first we look at adding a pentavalent impurity. Now, when you add a pentavalent impurity, impurities are added in a very, very small ratio. So 1 is to 10 raised to the power 10 is the kind of ratio that we normally follow when we are mixing the impurities. So अब अगर आप impurity mix करते हो pentavalent impurity का हम एक example लेते हैं, phosphorus. So let's say I mixed phosphorus. So what has phosphorus done? It has replaced a silicon atom. तो इसने एक silicon atom को replace किया. अब let's say एक silicon atom को replace किया जिसके around कितने silicon atoms थे? 4 थे. So इन 4 silicon atoms के 4 valence electrons में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट कर रहा था बीच में और यहां पर अब आ गया फास्फोरस. फास्फोरस पेंटावेलेंट है, यानी फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सेट हो गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन from phosphorus, what does this do? It increases the number of electrons. इसने number of electrons, free electrons को increase कर दिया and hence the system is said to be now an n-type doped मटेरियल. यानी कि अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल
एन टाइप हो गया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो अब अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूं तो मैं ऐसे कुछ दिखाऊंगा। लेट मी शो इट एज अ बॉक्स। I'll say that the electrons are being represented by these blue colored dots. So n-type semiconductor में, let's say, free electrons because of some of the bonds breaking, and hole मैं ऐसे दिखा रहा हूं. So there are some holes and more electrons, and hence we call it n-type semiconductor. So n-type में you can see here there are 5 holes and there are close to 12 electrons. ये एक depiction है बस, but what it tells you is that there is more availability of electrons. बच्चों याद रखना, n-type का ये मतलब नहीं है कि ये negatively charged है. याद रखिएगा, this species is absolutely neutral. ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें जो एटम सिलिकॉन और फास्फोरस यूज हुए हैं, उनके जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. सो इफ यू लुक एट दिस स्पेस एज अ यूनिवर्स, तो इस यूनिवर्स में जो ये रेड डब्बा दिखाया है मैंने, इस यूनिवर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, और इन सबका टोटल चार्ज मिला के एकदम कैंसिल आउट हो रहा है. कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, कुछ वेकेंट साइट्स क्रिएट हो गई हैं, बट इसके अलावा जो हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई नहीं दिखा रहे हैं. अगर उन सबके चार्जेस को हम ऐड करें तो नेट चार्ज 0 है. बट यस, availability of free electrons is more and hence we call it an n-type semiconductor. आप जरा पहले इतनी बात लिख लीजिए, समझ लीजिए, जो नोट करना है नोट कर लीजिए, and give me half a minute so that you are able to note it and then we'll continue. अब बच्चों, अगर ऐसे ही मैं एक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को पी टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आई विल ऐड अ ट्राईवेलेंट impurity. And what does this do? It helps me in having higher concentration of holes. Higher concentration of holes का मतलब क्या है? So let's say again, मैंने वैसे ही स्पेस अराउंड वाले रीजन के सिलिकॉन एटम्स लिए. 4 सिलिकॉन एटम्स के बीच में एक सिलिकॉन एटम है, यानी हर सिलिकॉन एटम के कांटेक्ट में 4 सिलिकॉन एटम्स हैं, और ये अपना एक एक कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन बाहर दो बीच वाले के साथ शेयर कर रहे हैं. अब उस बीच वाले की जगह पे आ गई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब भाई एल्यूमिनियम के ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लग गए, बट एक लोकेशन ये फ्री रह गई, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो दिस होल इज जनरेटेड व्हेन यू ऐड एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन. सो एक वेकेंट साइट्स, आप समझ रहे हो, ये हमने जब इम्प्योरिटी ऐड की तो इसने एक सिलिकॉन जो यहाँ ऑलरेडी था उसे रिप्लेस करके लेट से एल्यूमिनियम आ गया. ये समझिए, ऐसे समझिए. देन यू विल सी कि प्रीवियस कंडीशन में क्या था. अगर यहाँ पे सिर्फ सिलिकॉन होता, तो अगर उस सिलिकॉन का कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल स्पेस छोड़ देता, तो यू वुड हैव गॉट एन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेटेड. बट अब यहाँ आपने एक एल्यूमिनियम डाल दिया तो एक सिर्फ एक होल, एडिशनल होल जनरेट हो गया. And that is why in such materials the concentration of holes would be higher than the concentration of electrons. So if I draw a schematic diagram just showing how this material looks like to us for representation, ये सिर्फ representation है, तो holes ऐसे दिखेंगे with electrons. अब बच्चों याद रखिएगा, ये हमारा कौन सा मटेरियल बना? पी टाइप. सो पी टाइप में मेजर कॉन्सेंट्रेशन किसका है? होल्स का. और माइनर कॉन्सेंट्रेशन किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का. सो हमें याद रखना है पी टाइप में
हम बोलेंगे मेजॉरिटी में कौन है, यू हैव होल्स, एंड माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा एन टाइप की, सो मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी में कौन है, होल्स. So this is how a p type and an n type actually look like, right? So p type और n type में यही ध्यान रखना है. In p type the holes are in majority, in n type the electrons are in majority, and this is how the current will flow if you are connecting it to a battery. The holes and electrons will move in such a way that they are satisfying the conditions that are imposed on them due to the electrostatic forces. ठीक है. So अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि how does the use of semiconductor help us. तो उसके लिए हमें समझना होगा कि एक डायोड क्या होता है. एक डायोड क्या होता है. What is a diode? So when you have a p type and an n type connected to each other, the setup is called a diode. So अगर मैं एक डायोड को देखूं तो इधर लेट से है p टाइप, इधर है n टाइप. p टाइप में मेजॉरिटी में क्या है बच्चों, होल्स हैं, और n टाइप में मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो p टाइप में माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और n टाइप में माइनॉरिटी में क्या है, होल्स. दिस इज व्हाट अ PN, we call it a PN junction diode look like. This is how it looks like. अब जैसे ही आपने इन दोनों को पास लेके आए, what is going to happen? सबसे पहली चीज, right now both of these are neutral. न्यूट्रल का मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. बस हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं और वेकेंट स्पेसेस दिखा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा यहाँ कुछ और नहीं है. यहाँ बाउंड न्यूक्लियाई हैं जो नहीं दिख रही हैं, यहाँ बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ एन एटम जो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, राइट. तो अब अगर हम इन दोनों को पास लेके आएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, let us look at that. What is going to happen? This is what is going to happen. हम जरा आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये रहा मेरा p टाइप और इसके साथ है n टाइप. p टाइप, n टाइप. न्यूट्रल बॉडीज, इधर मेजॉरिटी में है होल्स, इस तरफ मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स. अब इस तरफ
माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑन दिस साइड माइनॉरिटी में है होल्स. Now, when you bring these two close to each other, what happens is that these electrons that are there, they get consumed in these holes. So, अगर आप देखोगे तो हमारा जो N टाइप है, N टाइप के इस लेफ्ट एंड से इलेक्ट्रॉन्स चले गए किधर किधर चले गए, हमारे पी टाइप की तरफ. और पी टाइप के जो कुछ फ्री होल्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए. दोनों स्पीशीज न्यूट्रल थी. अगर इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ आए तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारे एन टाइप वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हो गए. और इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट होने का मतलब मैं इन्हें यहां से इरेज कर देता हूं बच्चों. तो अब यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूं कि इस रीजन में पहली बात तो फ्री चार्ज खत्म हो गया. फ्री चार्ज क्या हो गया, डिप्लीट हो गया. और इस रीजन में नेट पॉजिटिव चार्ज फील होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल पार्ट से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड चले गए. सिमिलरली जो मेरी पी टाइप वाला ये रीजन है, the holes have got consumed, or you can say that they have got filled by electrons. So this part has actually attained a negative charge. So now because of this positive and negative charge, what has happened is that there is a small electric field that is generated in this region. Up the further electrons from the right cannot get into the holes because बीच वाले region में चार्ज ही नहीं बचा. तो अब मूवमेंट कैसे होगा, हम जानते हैं चार्जेस मूव बिकॉज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चार्ज टू द अदर एंड फॉर दैट वी नीड फ्री चार्जेस. फ्री चार्ज ही नहीं बचा. तो अब ये रीजन जो हमारा है, दिस रीजन इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड. कोई भी पीएन जंक्शन डायोड होगा उसमें ये डिप्लीशन रीजन नेचुरली एग्जिस्ट करेगा. Remember, the depletion region does not have any free charge. अब बच्चों हमारे राइट साइड से इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड से होल्स के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहे और अब चार्ज का फ्लो रुक गया. ये रीजन फ्री ऑफ चार्ज हो गया और हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज अ बैरियर दैट हैज बीन क्रिएटेड. अब ये बैरियर क्रिएट होते ही हमें लग रहा है कि नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग दिस डायोड, बिकॉज बैरियर क्रिएट होते ही ये तो फ्लो को रोक दिया हमने. सो हाउ डू वी ओवरकम दिस बैरियर एंड स्टार्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस सो दैट करंट इज मेंटेन्ड. अब बच्चों हम जब इस रीजन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर दो करंट्स की बात करते हैं. वो भी मैं आपको टर्म्स बता दूं. फर्स्ट करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट एंड द अदर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या होते हैं? नाउ व्हेन यू हैव अ डायोड, और इस डायोड की अगर मैं बात करता हूं आपसे, व्हेन यू हैव अ डायोड, इस डायोड का इतना पार्ट डिप्लीट हो गया है, इतना पार्ट डिप्लीट हो गया है, इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है. इधर है मेरा पी टाइप, इधर है एन टाइप. अब जो इधर होल्स हैं या जो इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कलर से दिखा देते हैं. If they have to diffuse through the boundary for the current to flow,
सिमिलरली इस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और कम होल्स हैं। बहुत अच्छे से समझना बच्चों इस थियरी को। अब अगर ये जो फ्री चार्जेस हैं, होल्स को इधर आना है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना है, लेट्स से, सो बाउंड्री को क्रॉस करके जो भी करंट होगा या जो भी फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो दिस इज डिफ्यूजन व्हेन यू डिफ्यूज अक्रॉस अ बाउंड्री, थ्रू अ बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक दूसरा करंट भी आता है इसमें, क्योंकि ये फ्लो होगा कैसे, फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में हम बात करेंगे, बट अभी के लिए अगर ये फ्लो होगा तो इस करंट को हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। दूसरी बात करते हैं अब हम दूसरे एक करंट की, विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। बच्चों अगर आपको ड्रिफ्ट करंट को देखना है तो आप सिर्फ डिप्लीशन रीजन को देखिएगा, और मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज सारा का सारा मजा इसी बात में है। अब आपने देखा बच्चों कि हमारा एक रीजन क्रिएट हुआ, ये रीजन इधर इधर, इस रीजन में इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई ऐसे। अब बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर आर एटम्स इन दिस रीजन, इस रीजन में कुछ एटम्स होंगे जो कि आयनिक फॉर्म में है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे। अब तो खैर वो इलेक्ट्रॉन साइड फिल हो गई, तो अब ये आयंस बोल सकता हूँ, एटम बोलूं या आयंस बोलूं, एटम्स स्लैश आयंस जो भी बोलूं, दोनों होंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट विल हैपन इज दैट देयर विल बी अ बॉन्ड ब्रेकिंग। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में सपोज करते हैं इस साइड पर एक एटम है जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और हमारा क्रिएट हुआ एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ज्यादा है या जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी वजह से इनका मूवमेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, होल मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डिप्लीशन रीजन में, इस रीजन में जो ये फ्रेश पेयर जनरेट हुआ, ये जो फ्रेश पेयर जनरेट हुआ, फ्रेश पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इनके मूवमेंट की वजह से जो करंट आएगा उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्योंकि जैसे ही जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, द इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, and hole which is like a positive charge will move in the direction of electric field. Please understand that for all practical purposes the hole is being treated as a positive charge site. So due to this movement, whenever there is a charge flow because of an electric field, you'll call it current. तो ये जो करंट जनरेट हुआ इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो डिप्लीशन रीजन वाला करंट जो जनरेट हुआ फ्रेश पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, और ऊपर वाला करंट इज डिफ्यूजन करंट। ये दो तरह के करंट्स होंगे जिनकी हम बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। And that is how we will come to know how do these currents contribute, what happens, how does the current flow when you apply a given voltage. So with this, I'll move on to forward biasing. तो अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग। सो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा बच्चों,
समझने की कोशिश करते हैं। Let me draw a diode again, and I hope all of you are noting down and listening and doing things with me. अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे वो कहते हैं ना बाबा लोग, अद्भुत लाभ होगा। अद्भुत लाभ के लिए तैयार रहो और काम बनेगा। सेमीकंडक्टर्स में सेमी नहीं फुल मार्क्स आने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सो जैसा हमने देखा कि व्हेन दीज टू मीट टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम, व्हाट यू हैव इज होल्स like this, and on the other side you have, what do you have? You have excess of electrons. Electrons फ्री हैं ज्यादा, इधर होल्स फ्री हैं ज्यादा। बीच में आ गया एक रीजन जिसमें चार्ज की हो गई तबाही, तबाही का मंजर। और इस मंजर में क्या हुआ भाई? इस मंजर में what you see is that you have region of positive charge here and a region of negative charge here, because of which there is an electric field which is in this particular direction. So can I say that this part is at a higher potential? ये terms लिखना बच्चों, when you're writing answers, please mention these terms. It makes the examiner feel that yes, this child has a complete idea about the things, and this side has a lower potential. ठीक है, लोअर पोटेंशियल क्यों है? नेगेटिव है। हायर पोटेंशियल क्यों है? पॉजिटिव है। फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं हम। अब इधर माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाई भी हैं और इधर माइनॉरिटी में कुछ होल्स हैं। अब हमने अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो मेरे को पी टाइप, जिसमें होल्स ज्यादा हैं, उसे मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एन टाइप को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और थोड़ी सी लेट से अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग बैटरी ली है जिसे मैं वेरी करना चाहता हूं, तो कैन आई से दैट दिस इज द एन टाइप connected to the negative terminal, this is the p type connected to the positive terminal. अब क्या होगा बच्चों? बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, लेट से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसे ई नॉट बोल देते। बिकॉज ऑफ दिस बैटरी देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, एंड लेट मी call it E. So can E, the electric field due to the battery, be increased? Yes, as we increase. As we increase what? As we increase V. और V increase कर सकते हैं हम बैटरी का, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है। अब देखो बच्चों, the moment you put an external electric field here, these positively charged particles, or let's say these holes, sorry, positively charged particles नहीं बोलना चाहिए, the holes start experiencing a force towards the in the direction of electric field. ऐसे बोलना चाहिए, in the direction of electric field, है ना? गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए और कोई और टर्म नहीं यूज करना चाहिए। Similarly, the holes experience an electric force opposite to the direction of the electric field. अब होल्स इधर आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाह रहे हैं, बाउंड्री और डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट हैज टू हैपन, एंड इट इज राइट नाउ नॉट हैपनिंग। अभी नहीं हो रहा है, लेट्स से अभी नहीं हो रहा है, बट देयर इज अ चांस ऑफ इट हैपनिंग। और ये इंपैक्ट अगर हुआ तो करंट फ्लो होगा, और ये करंट अभी नहीं फ्लो हो रहा है। सो ये वाला चार्ज अभी बैटरी का पोटेंशियल में और बढ़ाऊंगा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी,
जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ई नॉट को ये ओवरकम कर देगी एंड द फ्लो विल स्टार्ट, होल्स इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन, एंड विल assume get a current. But right now it is not happening. But what is happening? बच्चों अगेन आई विल से कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट हो गया, लेट्स से। अब होल जो यहां क्रिएट हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट मूव करने की कोशिश करेगा। सो कैन आई से दैट देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट करंट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट करंट। अब मैं यहां पर इसका I वर्सेस V ग्राफ भी बनाऊंगा आपके लिए। सो व्हाट यू सी इज there is a small amount of drift current, small amount of drift current, करंट इधर दिखा रहा हूं इन मिली एम्पियर्स, वोल्टेज इधर दिखा रहा हूं इन वोल्ट्स। सो शुरू में जैसे ही आपने बैटरी लगाई और V बढ़ाना शुरू किया, there is a small amount of drift current, but जैसे ही as E, the applied electric field becomes greater than E naught, the depletion region vanishes. क्योंकि ये जो डिप्लीशन रीजन था जिसकी वजह से ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी, अगर आपने ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी की वजह से जनरेट किया वो ई नॉट से ऊपर है, तो एकदम से ये डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा। क्योंकि डिप्लीशन रीजन क्यों है? क्योंकि चार्जेस, फ्री चार्जेस अवेलेबिलिटी नहीं है। बट अब इन फोर्सेस की वजह से फ्री चार्जेस अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आपके जो होल्स हैं वो इधर मूव करना शुरू कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करना शुरू कर देंगे, which means current which is in the direction of flow of positive charge or holes and opposite to the direction of the electron movement, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। राइट, ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमारे सर्किट में ऊपर इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये करंट वापस इधर ऐसे आएगा। दिस इज हाउ द करंट फ्लोज। ये वाली एरो जो है ये मैं ऊपर दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कहीं ये ना लगे कि बैटरी से करंट इस तरह से आ रहा है। बैटरी से करंट बच्चों बिल्कुल इस तरह से नहीं आ रहा है, करंट इधर आएगा ऐसे, बिकॉज इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, और ये करंट एकदम से राइज करता है ऐसे, एकदम से राइज करता है। दिस इज वेयर द डिप्लीशन रीजन, दिस इज द लोकेशन। जब मैं इतना पोटेंशियल लगा दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा बैटरी से, सो एकदम से करंट राइज करेगा एंड दिस इज हाउ द डिप्लीशन रीजन कैन बी ओवरकम एंड द चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग और हमारा करंट हमें मिल गया। अब आपको समझ में आया होगा, शुरू में सिर्फ ड्रिफ्ट करंट था। शुरू में कौन सा करंट था बच्चों? सिर्फ ड्रिफ्ट था। अब कौन सा करंट है भाई? ड्रिफ्ट तो है ही, प्लस साथ में डिफ्यूजन भी हो गया, एंड डिफ्यूजन इज द मेजर करंट। सो मेजर करंट अपना कौन सा है? डिफ्यूजन करंट है, एंड दिस इज हाउ द करंट पीक्स अप। सो आई होप ये डायग्राम, ये ग्राफ, ये डिटेल्स आप सबको समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट है, आई विल वेट फॉर अ मिनट फॉर यू टू आस्क मी, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज रिवर्स बायसिंग। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, करंट क्यों राइज किया ये समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं। सो नी वोल्टेज का मतलब एकदम नी शेप आ जाती है when the drift current is supported by the diffusion current because the depletion region is eradicated. ठीक है बच्चों, प्लीज इसको कंफर्टेबली आराम से नोट कर लीजिए।
And if you have any doubts at this stage, please feel free to ask me. Any doubts, guys? Anything that you have to ask me? Otherwise, let us now move on to reverse biasing. बच्चों, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? हम उल्टा कनेक्शन करेंगे. सो व्हाट वी डू इज, मैं आपको डायोड का पी साइड और एन साइड वैसे ही दिखा रहा हूं जैसे मैंने लास्ट केस में दिखाया था. सो पी साइड इज टू द लेफ्ट, एन साइड इज टू द राइट. लेट मी शो द एन साइड विद अ डिफरेंट कलर. सो अभी जैसे ही आपने कनेक्शन किया, what has happened is, we all know that there was a depletion region here with the negative charge and positive charge being like this. There was an electric field existing in the depletion region called E naught. You had holes in majority on this side and holes in minority on this side. Whereas you had electrons in minority on this side. I'm so sorry. ज़्यादा electrons दिखा गया मैं. Electrons in minority here and electrons in majority on this side. अब ये situation है, which is the natural situation of a PN junction diode. P type on this side, N type on this side. अब थोड़ा सा ड्रिफ्ट करंट जनरेट हो रहा होगा बिकॉज ई नॉट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रेक हो रहे हैं, बट अभी करंट की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने सर्किट ही नहीं दिखाया है. नाउ व्हाट यू डू इज यू कनेक्ट अ बैटरी हियर, बट दिस टाइम व्हाट यू डिड इज कि आपने बैटरी उल्टी लगाई है, which means N type is connected to the positive terminal, P type is connected to the negative terminal. तो भाई करंट का फ्लो इस सर्किट में ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, है ना भाई? This is how the current is bound to flow. अब हुआ क्या? The moment you connected the P type, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और इधर सारे के सारे होल्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे होल्स मूव कर गए, है ना? होल्स इस तरफ, एंड देयर इज नोबडी टू स्टॉप देम. इज देयर एनीबडी टू स्टॉप देम? हु कैन स्टॉप देम? देयर इज नो डिप्लीशन रीजन. ये सारे होल्स इधर भाग आए और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग गए. सो हुआ क्या बॉस? हुआ क्या? सोचो बच्चों, रिवर्स बायसिंग समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है. हुआ क्या? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे के सारे होल्स ने करंट दे दिया आपको फटाक से, इमीडिएटली. और ये करंट के बाद हुआ क्या? सिचुएशन हो गई ऐसी कि आपका जो है पी टाइप वाला रीजन वो डिप्लीट हो गया, होल्स खत्म हो गए. एन टाइप वाला रीजन वो भी डिप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए. एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो ये पूरा का पूरा ऐसे पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया भाई. इलेक्ट्रॉन्स चले गए, सो अब ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन हो गया. इधर से होल्स चले गए तो ये पूरा रीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया. बच्चों, ये मैं माइनस और प्लस दिखा रहा हूँ, प्लीज याद रखना ये माइनस और प्लस मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपको ये बता सकूं कि दिस पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज, नाउ दिस पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज. पहले लिखा था पी टाइप एन टाइप. पी टाइप में पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, पी टाइप में होल्स फ्री ज्यादा है. एन टाइप नेगेटिवली चार्ज नहीं है, एन टाइप्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है.
जो डिप्लीशन रीजन है उसके साथ वाला रीजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल नहीं बचा क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, उधर से होल्स चले गए. सो कैन आई से दैट द डिप्लीशन रीजन हैज एक्सटेंडेड टू द एंटायर डायोड? Depletion region extended. Depletion region extend हो गया और यहां पर सिचुएशन ये हो गई कि ये वेरिएबल बैटरी थी. अब हमारे पास कहानी ये है कि भाई करंट, बहुत थोड़ा सा करंट. अब क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है? आइडियली अगर ये आइडियल डायोड है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, बट होगा क्या? बिकॉज ऑफ दिस सच अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड. कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इधर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल, और कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इधर भी जनरेट होंगे. जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे एंड होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे. दिस इज बेसिकली द फिनोमेना इज ब्रेक होके, जो बॉन्ड्स ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हुए, the current due to them is called the drift current, which is a very small amount. Ideally in the reverse bias situation there is almost no current. But अब अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊंगा, सो मैं ग्राफ कैसा दिखाऊंगा? बच्चों सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं V और I दोनों के डायरेक्शंस उल्टे दिखा रहा हूं कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग, सो दैट अगर आपको एक कंबाइंड कहीं पर भी ग्राफ बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा. सो इन दिस डायरेक्शन यू आर शोइंग I करंट, हियर इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग. तो ये, और ये करंट बहुत छोटा होता है तो यहाँ करंट की यूनिटी चेंज हो गई, माइक्रो एम्पियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना. V अप्लाइड वोल्टेज वोल्ट्स में ही है, but you'll have a very small current as you increase the voltage. So this is how the current would look like. This is how. अगर मैं बहुत strong potential difference लगाऊंगा, then what will happen? There will be a breakdown of a lot of pairs inside, generating a large amount of free charge carriers, and hence the current will pick up. थोड़ा सा करंट आएगा बट आएगा, और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं जेनर डायोड सिचुएशन, जिसमें कि अगर हम बहुत हाई वोल्टेज भी लगा दें तो एक थोड़ा सा करंट आता है विच एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ करंट एंड वोल्टेज. तो कहीं हाई वोल्टेज लगाए और आपने वहां पर इफ यू पुट अ रिवर्स बायस डायोड, जेनर डायोड, then it will regulate the voltage and current in the circuit. Otherwise, in the normal conditions, if you do not apply a very high voltage, there will be a very low current which can be assumed to be almost zero current. So यहाँ पर जो भी ये current है, this is mainly or this is entirely the drift current. तो बच्चों जब भी आपको डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग एक्सप्लेन करने को आता है तो प्लीज नोट दैट यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. मेरे को लगता है कि आप ये सुनने के बाद यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, and I hope you'll be able to write it in lines now, or if you read it also from a textbook, you'll be able to understand and put it in the right words. That was the purpose of explaining this. आपको, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम इसमें दो और चीजें आपके जो सिलेबस में हैं, दैट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी जरूर बात करते हैं. राइट, बट बिफोर दैट द सिंबल for
a diode. The symbol for a diode is like this. You have a triangular structure with a straight line. This triangular structure denotes the p-type side, and this line denotes the n-type side. So p-type and n-type, right? So अब अगर मैंने एक बैटरी ली और उस बैटरी से एक डायोड को ऐसे कनेक्ट किया कि p type is connected to the positive terminal, n type is connected to the negative terminal. So this is how the symbol for forward biasing would look like. Similarly, if I have to show the symbol for reverse biasing, I'm not changing the diode polarity. मैंने p type इधर रखा, n type इधर रखा. अब मैंने क्या बदला? Battery की polarity. So this is how you will symbolically represent a reverse biasing case. So बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी. You've been able to understand these structures. You've been able to understand how to represent them. अब इस केस में there'll be a current. That is how we'll show it. This is a current due to the drift as well as the diffusion. Diffusion is the majority current in forward biasing. इस केस में we will in general assume that there is no current. So assume there is no current in this circuit. Reverse biasing में ideal diode के केस में. So ideal diode की बात कर रहा हूँ. Assume there is no current in it. ठीक है. अब इतना करने के बाद हम बात करेंगे about rectifiers. What does a rectifier do? A rectifier converts a bidirectional pulse into a unidirectional pulse. So bidirectional यानी AC current को one direction यानी DC current में convert कर देंगे. तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास normally AC current आता है, तो हम एक इस तरह का इंडक्शन कॉइल दिखाते हैं. इंडक्शन कॉइल, इस इंडक्शन कॉइल पे हमारा इनपुट करंट आ रहा है, इनपुट, और इस तरफ हम आउटपुट ले रहे हैं. आउटपुट बच्चों जब भी हम दिखाते हैं, याद रखिएगा, आउटपुट दिखाएंगे हम, और आउटपुट हम किस चीज के अक्रॉस लेते हैं? हमेशा एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं. तो हम एक रेजिस्टेंस दिखाते हैं R0. और अब ये होता हमारा नॉर्मल सर्किट. अब हमने रास्ते में यहां पर लगा दिया एक डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड. अब इस केस में क्या होगा बच्चों? एसी आ रहा है. लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव साइड. जब ये पल्स आई, सो आप जानते हैं हम एक ट्रांसफार्मर जैसा सर्किट दिखा रहे हैं. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा बिकॉज एक इंडक्टर दूसरे इंडक्टर का अपोज कर रहा है, राइट? अब ये एक पार्ट बना सर्किट का. मैं नीचे ही इस सर्किट का दूसरा पार्ट बना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पे होगा क्या. एंड टू अंडरस्टैंड दैट, अगर हमें ये समझना है कि यहाँ पे होगा क्या, वी हैव टू ड्रॉ टू पर्टिकुलर केसेस हियर. ठीक है, मैंने सेम सर्किट दिखाया है आपको 2 बार. एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट मैं आपको अब समझाऊंगा. अब हाफ साइकिल के बाद ये एंड हो गया नेगेटिव, ये एंड हो गया पॉजिटिव. तो ये साइड हो गई पॉजिटिव, ये साइड हो गई नेगेटिव. अब अगर आप देखें तो व्हेन द इनपुट साइकिल इज पॉजिटिव एट दिस एंड एंड नेगेटिव एट दिस एंड, सो इनपुट में अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मेरी पॉजिटिव पल्स आ रही है,
अब अगर आप देखें तो ये डायोड इस समय किस पोजीशन में है? रिवर्स बायस में। आप देख सकते हैं रिवर्स बायस, नेगेटिव कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द एन टाइप। सो देयर इज रिवर्स बायसिंग। जब ये वाला साइकिल आया ऑल्टरनेटिंग करंट का, अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो आउटपुट में मुझे क्या मिला? आउटपुट में मुझे क्या मिला, मैं आपको वो दिखा देता हूं बच्चों। आउटपुट में मुझे करंट नहीं मिला क्योंकि डायोड हो गया रिवर्स बायस। सो देयर इज नो करंट इन द आउटपुट। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट हाफ साइकिल। नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखिए अब आई ऑपोजिट साइकिल, यानी कि लेट से मेरे पास ऐसी साइकिल है, ठीक है ना। अब आपको जो करंट मिला, अब आपको करंट मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला। और आपको करंट मिला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। P type connected to the positive, N type connected to the negative. This is how the current is obtained, है ना। और अब ये करंट जो आपको मिला, आउटपुट भी मिला, इसलिए आपने दिखा दिया कि भैया इनपुट था, आउटपुट भी मिला। सिमिलरली अब यहाँ पे कंप्लीट करंट आउटपुट में भी मिला। ऐसी सिचुएशन जो हुई, इसमें क्या हुआ? हमने आधा साइकिल में जीरो करंट आधे में आया। मैं उल्टे भी बना सकता था ग्राफ, ऊपर ऐसे बनाता, उसमें जीरो आ जाता, नीचे वाले में ऐसे आ जाता, वट एवर वे टू शो इट, उससे कोई फर्क नहीं है। बट ये है कि हमें एक हाफ साइकिल मिल रही है, एक नहीं मिल रही। दिस काइंड ऑफ अ रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड अ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हमने क्या बोला बच्चों? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब अगर मैं ऐसे केस में देखूं, रेक्टिफिकेशन की बात करूं और मैं ऐसे पर्टिकुलर केस में देखूं बच्चों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां निकल के आती है कि इसका ये मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा इनपुट और आउटपुट में, for one direction of the pulse in the input there is current in the output, for the other direction of current in the input there is no output. So अगर मैं आपको एक इनपुट ग्राफ बना के इधर दिखाता हूं, जो कि सप्लाई आ रही है विच इज इनपुट, सो करंट आ रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करंट आ रहा है, सॉरी, इस तरह से एसी आ रहा है, बट आउटपुट में मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। सो लेट्स से पॉजिटिव पल्सेस मिल रही हैं। सो आउटपुट में क्या हो रहा है? आउटपुट में क्या हो रहा है? पॉजिटिव पल्सेस के टाइम पे फॉरवर्ड बायसिंग है, नेगेटिव पल्सेस के टाइम पे रिवर्स बायसिंग है। फिर पॉजिटिव पल्स के टाइम पे फॉरवर्ड बायसिंग है, नेगेटिव पल्स के टाइम पे रिवर्स बायसिंग है। सो दिस इज हाउ only half of the wave is allowed. So you can see that the half wave is rectified. और ये आउटपुट जो मैं देख रहा हूं, ये करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस देख रहा हूं। आर नॉट को हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस यहां पर। सो बच्चों इस डायग्राम को और इस पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है डायोड का, दैट यू ओनली हैव यूनिडायरेक्शनल पल्सेस, the pulses of the other direction are made zero in the output. लिख लीजिए इसे, spend 2 minutes and write it down. Okay, so after half wave rectifier, we will look at a full wave rectifier. Full wave rectifier.
थोड़ा सा सर्किट में वेरिएशन है, नथिंग एल्स। समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स से दिस इज अगेन द इनपुट इंडक्शन कॉइल, ट्रांसफॉर्मर बोल लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टर्स बोल लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम, इज योर विश। अब हमने इस केस में क्या किया, हमने ऊपर एक डायोड लगा दिया और नीचे भी एक डायोड लगा दिया, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे किया कनेक्ट, और बीच में टैपिंग करके हमने अपना लोड रेजिस्टेंस लगा दिया R0। ठीक है, मैं सेम डायग्राम दोबारा बना देता हूं, बिकॉज आई हैव टू शो यू बोथ द साइकिल्स ऑफ द इनपुट। सो मैंने फिर से बना दिया। देखना बच्चों, यहां पर एक डायोड, यहां पर एक डायोड, सेम सर्किट, और हमने बीच में टैप करके अपनी लोड रेजिस्टेंस लगा दी। अब बच्चों सपोज करते हैं पहले आई ऐसी साइकिल जिसका पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर है। सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, और सेंटर का पोटेंशियल नेगेटिव वाले से ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाले से कम होगा। सो कैन आई से दिस इज नेगेटिव, सॉरी दिस इज पॉजिटिव compared to the negative upper and this is negative compared to the positive lower। इस तरीके से हो गया। अब आप देखो सर्किट दो हिस्सों में है, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला डायोड, ऊपर वाला डायोड कैसी बायसिंग में है, फॉरवर्ड। नीचे वाला डायोड कैसी बायसिंग में है, यहाँ पर देखने वाली बात है। सॉरी, ऊपर मैं गलत बोल गया, ऊपर वाला डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में है, क्योंकि नेगेटिव कनेक्टेड टू द पी टाइप, ये पी टाइप है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू दी पी टाइप नीचे है। तो ऊपर वाला हो गया रिवर्स बायसिंग में, नीचे वाला हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। हम बात कर रहे हैं अभी हाफ ऑफ द सर्किट की। ऊपर वाला रिवर्स, नीचे वाला फॉरवर्ड, तो करंट किधर से आया, नीचे वाले से आया। कैसे आएगा करंट, ऐसे आएगा, आई पॉजिटिव टू दी नेगेटिव साइड। ध्यान रखना बच्चों, R0 में करंट किस डायरेक्शन में आया, ऐसे आया। नेक्स्ट साइकिल में जब ये साइड हुई नेगेटिव, ये हुई पॉजिटिव, तो ये बोलूंगा पॉजिटिव, ये बोलूंगा नेगेटिव। यहाँ पोटेंशियल नीचे आने पे इन दी आउटपुट कम हो रहा है, तो दिस इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द लोअर नेगेटिव। अब आप देखिए, ये वाला हो गया रिवर्स बायस्ड और ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस्ड, ऊपर वाला डायोड। और इसने करंट कैसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया। यानी कि आप देखिए कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग बोथ इनपुट waves there is an output current, and output through the load resistance R0 is in the same direction throughout। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अब आपको इनपुट और आउटपुट का ग्राफ दिखाऊं, सो इनपुट आया, इनपुट कैसे आया, इनपुट तो साइनसॉइडली आएगा, आएगा तो आएगा भाई, रोक थोड़ी सकते हैं उसे। ये आ गया इनपुट, ऐसे आया करंट, है ना, दिस इज इनपुट करंट। और
अब हम देखें how would the output look like. How would the output look like? I hope this writing is comfortable for all of you. How would the output look like? बच्चों ये आप टाइम के रिस्पेक्ट में करंट को प्लॉट कर रहे हो. So if I forgotten to write, I hope you all know. तो अब आउटपुट में करंट एक ही डायरेक्शन में आया, चाहे उसे पॉजिटिव पल्स दिखाऊं चाहे नेगेटिव पल्स दिखाऊं. सो पॉजिटिव पल्स थी तो भी पॉजिटिव आया, नेगेटिव पल्स थी तो भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव पल्स आई फिर पॉजिटिव आया, नेगेटिव पल्स आई फिर पॉजिटिव आया. So this is how the output is, and the waves are fully rectified. So half wave rectifier mein during one of the cycles you were getting a zero current because there was only one diode and it got either reverse biased or forward biased during the half cycles. यहाँ पर दो diodes लगा दिए, so one of them when it is reverse biased, the other is forward biased, but whichever may be the forward biased diode, the current through the load resistance is in same direction in both the cases, and hence we have unidirectional pulses only, though the input had bidirectional. That is what it means. तो हम इसमें फिल्टर विल्टर लगा के इसको AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये पल्सेटिंग से कांस्टेंट करंट भी हमें मिल सकता है. That is what a filter does here. ठीक है बच्चों, so I hope this content is sufficient for you and you've understood. Please note it down properly. In case you have any doubt here, please feel free to ask me. I'm there for you. आप चेक कर लो आराम से, बना लो, कुछ भी पूछना है पूछ लो. I'm available, but this is what I wanted to do as the last part है. अगली क्लास में बच्चों, क्योंकि अब CUET का नोटिफिकेशन आ गया है और हमने मेजरली जो इंपॉर्टेंट चीजें थी फिजिक्स में वो सारी कवर कर ली हैं. सो अगली क्लास में मैं बात करूंगा बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की फॉर CUET एग्जाम. सो व्हाट आई डू इज आई पिक अप वन पेपर ऑफ CUET दैट हैपेंड लास्ट ईयर. मैंने खुद दिया था तो इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस वन ऑफ द पेपर्स, डिस्कस द क्वेश्चंस, और जब मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ऑफ कोर्स आपके बोर्ड के लिए भी सपोर्ट मिलेगा, बट देन you will also be able to learn something new, and you will also be able to understand that getting full marks in CUET is not difficult. So if you plan to look at CUET, if you plan to write that exam, which of course I assume many of you would be writing because it's the exam for many universities, almost all universities across the country. So इसलिए आपको तैयारी उसकी करनी होगी. We will help you, we will teach you everything, whatever domain subject you want to do, English and GT, everything would be covered. Test series would be covered. There'll be self-paced sessions which you can do at your own pace. Recordings होंगी आपके पास, सब कुछ होगा. So वो सब तो हो गई प्रोग्राम में, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहेंगे, बट मैं आपको उस दिन प्राइमरीली CUET का पेपर दिखाकर ये जरूर बताना चाहूंगा कि विद just 1 month left after your board exams for CUET, you can do a fabulous job, you can do very well in the exam, and it is not difficult. तो वो मैं कुछ भी कहता रहा हूँ आप मानोगे नहीं, जब आप खुद करोगे, मेरे साथ करोगे, तो आपको समझ में आएगा. So please ensure that you're there in that session. Okay, I haven't received any query from anyone, so I'm assuming things are going smooth and you'll do it. So बच्चों, अभी तो ये कहने का टाइम आ गया. Thank you for being with me. Thank you, and I hope you've understood, and all the best for your exams. Thank you.